प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु विच सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨया दिन ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਲਿਫਟ ਅਪ ਯੋਰ ਨੇਮ ਹਾਈ ਓ ਗॉड, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗॉड। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ।
ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 1 ਸੈਮੂਅਲ ਚੈਪਟਰ 15, ਉਹਦਾ 22 ਵਰਸ ਹੈ। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सो आज आप सीखांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਪਤੀ ਦੀ, ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 26 ਤੇ 27 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने एक इंसान ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ अपनी समानता ਵਿੱਚ अपने स्वरूप ਚ बनाया। 27 ਚ लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप च बनाया, उन्हें एक इंसान जो बनाया, उन्होंने सारिया चीज़ां जिहड़ियां परमेश्वर ने बनाईयां, उन्हां दे उत्ते सब दे उत्ते उन्होंने अधिकार दिता, डोमीनियन दे दी हर चीज़ के उत्ते। इस तो बाद आप देखांगे जेनेसिस 2 ਦਾ 15, 16, 17। जदों उन्होंने डोमीनियन दी, कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी उस आदम नू मनन दे लई। वो आज्ञा की सी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सिर्फ इतना ही काम दिता सी परमेश्वर ने। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक आज्ञा देती है कि बाकी तो सब काम कर सकता, पर ये एक काम नहीं करना। पर इंसान उसने की किया? जेनेसिस 3 ਦਾ 6 ਚ लिखा है, हवा दी वाइफ नू आदम दी वाइफ का नाम हवा सीगा, लिखा है, उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। क्या परमेश्वर पवित्र है, उन्होंने सामने पाप रह नहीं सकता। जो असीं उन्हां दी अनाग्याकारिता करते हैं, वो परमेश्वर की नज़र च पाप है। तो जदों उसने पाप किया तो की होया? 3 ਦਾ 24 लिखा है उत्पत्ति दा, इसलिए आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वो जिस जगह ते उन्होंने रखा सी, उस तो कढ़ के अपनी किधर तो कढ़िया, परमेश्वर ने अपनी हजूरी तो कढ़ दिता उसनू जो पाप, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी के सामने पाप नहीं टिक सकता। ते उस अपने जो अदन की वाटिका सी, उसके आस पास एक ज्वालामयी तलवार लगा दी। पर इस तो पहला रोज की हुंदा सी? 8वें च लिखा,
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। ਇਹਦਾ मतलब रोज दिन ਦੇ ठंडे समय च परमेश्वर और उन्हां दा आपस कम्यूनियन सी, आपस च मिलदे सीगे, गल्लां करदे सी, शब्द सुनाई दिंदा सीगा। ते उन्हां दा जदों अनाग्याकारिता हुई, परमेश्वर दा और आदम दा ये रिलेशन टुट गया। हुण जदों ये रिलेशन टुट गया, असी दुनिया विच असी भेजे गए, उस आदम दी वाटिका चों निकाले गए, तो असी दो रस्ते है, एक परमेश्वर को जाना, एक दूसरे परमेश्वर को हजूरी, एक परमेश्वर दी गैर हजूरी। हर इंसान परमेश्वर दी हजूरी च जाना चाहेगा। कि कोई रास्ता है कि परमेश्वर इन्ने भले जो परमेश्वर है वो चाहते है कि उन्होंने बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने उन्होंने अपने स्वरूप च बनाया कि मेरी फैलोशिप होए, वो आदम नूं अपने स्वरूप च बना के उन्होंने फैलोशिप करते सी। पर जदों उन्हें पाप किया, वो चला गया, उन्होंने कर दिता अपनी हजूरी तो कि परमेश्वर ने इसलिए इंसान बनाया कि उन्होंने हजूरी तो दूर रहन? नहीं, परमेश्वर ने इंसान बनाया कि असी उन्हां दी हजूरी विच रहीए और साडी फैलोशिप उन्हां नाल होए। हुण जदों ये पाप आ गया तो कि ये दोबारा तो रिस्टोर हो सकता रिलेशन? परमेश्वर वचन च लिखिया परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आपां इहदे लई जावांगे जॉन 3:16 ते 17 वर्स, 2 वर्सिस है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और ये उद्धार की है परमेश्वर दे नाल उस रिलेशन दी रेस्टोरेशन। क्योंकि पाप दे नाल रहत आंदा है, उस रहत तो बचाने दे लई परमेश्वर ने अपने नाल रिस्टोर रिलेशन करन दे लई ये रास्ता लभ्या, प्रभु यीशु मसीह दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? प्रभु की चाहते है कि जो आप गलती की, गुनाह किया, इन्ने भले परमेश्वर है, जो आप इन्हों को माफ़ी मंग लें, अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर माफ़ करके वो रिलेशन साडे नाल रिस्टोर हुंदा है। जिवें कि 1 जॉन 1 लिखिया है 8वें च, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप भी नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो धर्मी ठहराए गए, जेडे इस दुनिया साडी तरह आए हैं पर उन्होंने आप कोई पाप नहीं किया। वचन च असीं सिखदे हां तो उन्होंने अपनी बलि दे के वो निष्पाप बलि हुई, जदों साडे पापां दा प्रायश्चित वो बने, तो जदों असीं उन्हां ते विश्वास करते हैं असीं पापां तो छुटकारा पाने आ। ते आपां की करना हुंदा? इहदे विच रोमन 10:9-10 है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। असी सिर्फ इन्ना काम करना हुंदा है तो साडा बॉर्न अगैन, असी परमेश्वर विच दोबारा जिलाए जांदे, साडा परमेश्वर दे नाल एक रिश्ता बन जांदा है। मती 3:17 च आपां कल देखिया सी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं कहा मैं इस तो प्रसन्न हां, ये मेरा पुत्र है। तो देखिए प्रभु यीशु ने की किया परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दे लई। आपां जावांगे इब्रानियां दी पुस्तक चैप्टर 5 विच, उहदा 8वां वर्स है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उन्होंने भी आज्ञा मननी सीखी है, सो इसलिए आपां नूं परमेश्वर दी आज्ञा मननी हैगी। तो अपने लिए की आज्ञा है वही जॉन दा जेड़ा 3:16 है कि जेड़ा कोई परमेश्वर दे वचन ते उन्हां दे इकलौते पुत्र ते विश्वास करेगा उन्हां दा अनंत जीवन हैगा। परमेश्वर दे कलाम उत्ते आपां ने विश्वास करना, परमेश्वर दे वचन उत्ते
जो कि प्रभु यीशु मसीह जी है। आप दूसरे सॉन्ग च जावांगे। यीशु के कलाम से ही मिलती नजात है, यीशु के कलाम से ही मिलती नजात है। अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है, अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है। यीशु के कलाम से ही मिलती नजात है। यीशु का कलाम ही तो जीवन की रोटी है, यीशु का कलाम ही तो जीवन की रोटी है। यीशु का कलाम हीरे कुंदन और मोती है, यीशु का कलाम हीरे कुंदन और मोती है। यीशु के कलाम से ही बनती सारी बात है, यीशु के कलाम से ही बनती सारी बात है। अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है, अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है। यीशु के कलाम से ही मिलती नजात है। यीशु का कलाम सारे बंधनों को तोड़ता, यीशु का कलाम सारे बंधनों को तोड़ता। टूटा हुआ रिश्ता बाप बेटे का वो जोड़ता, टूटा हुआ रिश्ता बाप बेटे का वो जोड़ता। सच्चा है कलाम यार सच्ची ये बात है, सच्चा है कलाम यार सच्ची ये बात है। अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है, अनंत जीवन की फिर मिलती सौगात है। यीशु के कलाम से ही मिलती नजात है। यीशु के कलाम से ही मिलती शिफा है, यीशु के कलाम से ही मिलती शिफा है। यीशु का कलाम करता दुखों को रफा है, यीशु का कलाम करता दुखों को रफा है। यीशु के कलाम से ही मिटती काली रात है, यीशु के कलाम से ही
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਦਰ ਗॉड। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜਾਤ ਦੇ ਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਠਹਿਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ स्वर्ग के नीचे इको ही नाम दिता गया जो प्रभु यीशु मसीह जी का नाम है। इस नाम विच ही नाजात है, इस नाम विच ही छुटकारा है खुदावंद। मदद करना सब दी फादर, सब दे दिलों नूं खोलना लॉर्ड होली स्पिरिट, सब दे दिलों नूं तैयार करना कि जो वचन थोड़ी सहायता दे नाल बीजा गया इस नूं वधान च मदद करना, अपने दिल खोलन ताकि खुदावंद भोर दा तारा उन्हां दे दिलों विच चमके और सारे अंधकार दी छुट के रोशनी की संतान बन जान खुदावंद। थैंक यू फादर, सब हर चीज़ लॉर्ड थोड़े नाम नूं महिमा मिले, थोड़े नाम नूं जलाल मिले। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल आमीन। Amen. Praise the Lord, everybody. Just a reminder, we are 7 days a week, every day, 12 o'clock noon, Toronto time. If you want to give any prayer request, you can put that in the comment section. And God is the healer, and we will join with your prayer. Have a blessed day. Thank you.